Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 13 for the subject of Introduction to Information Technology. हमारा ये भी लेक्चर नंबर सिस्टम्स के हवाले से है. Here are different objectives of this lecture. In this lecture we are going to perform different conversions from hexadecimal number system to decimal, octal and binary number systems. Now the first conversion is from the hexadecimal to decimal system. In this conversion we will start with the least significant bit of the hexadecimal value and will multiply each digit with rising power of 16 till we reach the most significant bit. Now here again, suppose I have a hexadecimal value, let's suppose 3A4, this is hexadecimal value. Now this value here 4 is the least significant digit, and the value 3 is the high significant डिजिट. और अगर हम इसको बाइनरी में देखें तो क्योंकि बाइनरी में हमारे पास 1 0 1 0 1 0 होते थे तो वहाँ पर हम डिजिट की जगह इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और हाई सिग्निफिकेंट बिट कह देते थे. लेकिन क्योंकि हम डील कर रहे हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम से तो अब हम इसको बिट नहीं कहेंगे, हम इसको डिजिट कह देंगे, लेकिन आइडिया सेम है. तो यहाँ पर LSB का मतलब least significant digit यानी LSD है. So whenever we want to convert a hexadecimal value to a decimal value, we will start with the least significant bit and multiply each digit of the hexadecimal value with rising powers of 16. So it means that if we have 3, A and 4, what we will do? We will multiply 4 with 16. We will also multiply A with 16. We will also multiply 3 with 16. Now we have the rising powers. Power will rise in this direction from least significant to more significant. It means that the power here will be 0, the power here will be 1 और यहाँ पर हमारे पास power 2 होगी. Least significant digit will have 0 as a power of 16. Now look, 4 is the least significant, so 4 has 0 as a power of 16. Digit next to the least significant will have 1 as power of 16. Now A is next digit to the least significant, so it has 1 power, and this process goes on. We will then add all these values. It means that we will add these values to obtain a result, and the resulting value will be a decimal number. Now let's have a look at the example. Now this is example 1, hexadecimal to decimal conversion. Now our question is, we have 237 of hexadecimal and we want to find the decimal equivalent of it. Now this is our question. We have 237 hexadecimal and we want to convert it into decimal. Now what we will do? We will start with the least significant bit or digit. Now clearly 7 is the least significant digit, while 2 is the most significant digit. So we will move in this direction and multiply a digit with rising power of 16. So हम क्या राइट अप करेंगे? हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 7 multiplied by 16, 3 multiplied by 16 and 2 multiplied by 16. 7 हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट है, सो यहाँ पर 16 की पावर 0 होगी.
नेक्स्ट 3 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर पावर 2 होगी, और इसके बाद हम इनमें प्लस का साइन ऐड कर देंगे। नाउ अब हम इसका रिजल्ट कंपाइल कर लेते हैं। वी हैव 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 64, sorry 256. Now the answer is 7 plus 48 plus 5 1 12, which gives us a value of 5 6 7. So it means that 237 of the hexadecimal is equivalent to 567 of the decimal number system. यहाँ पर हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन क्या होगी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 567 ऑफ डेसिमल इन hexadecimal. So this will be our question for cross verification. We will simply divide the 567 by 16. Here we have 567 and we will divide it with 16. Now what is the value of 16 multiplied by 36? We have the calculator. 16 multiplied by 36 is equal to 576. So it means that we will not be using this value. So we will be using 16 multiplied by 35, which will be equal to 16 multiplied by 35 equal to 560, which is less than 567. So 1635 times is 560 and the remainder value is 7. Now again जो हमारे पास रिड्यूस्ड कोशेंट वैल्यू आई है ये 16 से ग्रेटर है, इसको हम दोबारा 16 पर डिवाइड करेंगे। सो वी विल हैव 16 2 times 32 and the remainder will be 3, which is our hexadecimal value. So ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं। Next we have another example 40261 in the hexadecimal and we want to convert it into the decimal value. इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट है, 4 हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट है। सो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और डिजिट बाय डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाएंगे। हर डिजिट को राइजिंग पावर ऑफ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 will be multiplied by 16 raised to power 0, 6 will be multiplied by 16 raised to power 1, 2 will be multiplied by 16 raised to power 2, 0 will be multiplied by 16 raised to power 3 and 4 will be multiplied by 16 raised to power 4। और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है वो है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। नाउ इट इज़ अ 2-step प्रोसेस। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यू इनटू डेसिमल वैल्यू एंड इन द सेकंड स्टेप वी विल कन्वर्ट द डेसिमल वैल्यू इनटू ऑक्टल वैल्यू। अगर आपको याद हो तो हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन भी ऐसे ही की थी कि हमने बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया था और बाद में डेसिमल से ऑक्टल में चले गए थे। और इसी तरह ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी ऐसे ही की थी। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में भी हमने पहले ऑक्टल से डेसिमल बनाया था और बाद में डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाया था। सो दिस इज़ द सेम प्रोसेस। वी विल फर्स्ट कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ए डेसिमल नंबर and after that we will convert the decimal number system into octal system. Now here is a simple short example. We want to convert 26 into octal. Now this is our example 1 for hexadecimal to octal. The question is 27 of hexadecimal is equivalent to question mark of octal.
सो इसमें हम 2 स्टेप्स करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट 26 इनटू डेसिमल। इसके लिए हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। वी विल डू इट एज 6 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब हमारे पास पावर्स आ जाएंगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट पर 0 और मोस्ट सिग्निफिकेंट पर 1। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 6 प्लस 32 और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 38। सो इट मीन्स दैट 26 of the hexadecimal is equivalent to 38 of the decimal। अब हमारे पास आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कन्वर्ट 38 of decimal in octal। सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक रह जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 38 इन डेसिमल इन ऑक्टल। सो इसके लिए सेम प्रोसेस, हम क्या करेंगे, 38 को हम 8 पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 38 है, यहाँ पर हमारे पास 8 है, क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नाउ 8 5 टाइम्स 40, 8 4 times 32, so we will use this option, 8 4 times 32 and the remainder is 6। अब ये जो कोशेंट वैल्यू है ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि ये 8 से लेस है। सो दिस इज आवर ऑक्टल वैल्यू। सो वी कैन से दैट 38 of the decimal is equivalent to 46 of the octal। Conversely, 38 of the decimal is equivalent to 26 of the hexadecimal, so you can say that 26 of the hexadecimal is equivalent to 46 of the octal। So this is the simple example for converting a hexadecimal number into octal number। Here is another example। इसमें हमारे पास 237 है हेक्साडेसिमल में और इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप उसी तरह से ही हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाएंगे एंड सेकंड स्टेप में हम डेसिमल टू ऑक्टल मूव कर जाएंगे। सो हमारे पास ये आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। नाउ अगेन it is also a 2-step process। In the first step we will convert the hexadecimal value to decimal value, and in the second step we will convert the decimal to binary value, just like the previous conversion। So क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा जो है वो कॉमनली यूज सिस्टम है, इसलिए हम उसको एज ए बेस लाइन यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम ये 2-स्टेप प्रोसेस एक्चुअली करते हैं इन कन्वर्जन्स को परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास 26 हेक्साडेसिमल में है और इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। Now this is example 1 for hexadecimal to binary conversion। We have 26 in hexadecimal and we want to convert it into the binary number system। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कन्वर्ट 26 into decimal। So in the first part our question will be this: what is the value of 26 of hexadecimal in decimal number system? This is our first part। We will apply the same process to 6 and we will multiply 6 with 16 plus 2 with 16
अब यहाँ पर हम पावर्स लगाएंगे, यहाँ पर 0 पावर और यहाँ पर 1 पावर, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ 0 पावर और उसके साथ 1 पावर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 × 1 + 2 × 16। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 6 + 32 = 38। सो वी कैन से दैट 26 of the hexadecimal is equivalent to 38 of the decimal। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है। नाउ व्हाट इज स्टेप 2? कन्वर्ट 38 into binary। So our question in this part is this. This is our question in this part। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही स्कीम हम यूज़ करेंगे कि 38 को हम रिपीटेडली 2 पर डिवाइड करते जाएंगे। नाउ वी हैव 38, वी स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2। 2 19 times is 38 and remainder is 0। Now again 19 is greater than 0 or 1, we will again divide 19 by 2, so we will have 2 here। 2 9 times is 18 and the remainder is 1। अब दोबारा ये 9 जो है ये ना 0 ना 1 है, इसलिए हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। वी हैव 2 4 times 8 and the remainder is 1। Again we will have to reduce this 4 further, so we will again divide it by 2। 2 times is 4 and the remainder is 0। Again we will have to divide 2 by 2। Now 2 1 times is 2 and the remainder is 0। अब ये जो हमारे पास 1 है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। सो इट मीन्स हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारे पास इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू आ गई। तो इसको हम इस वे में रीड आउट करेंगे, जिससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ यूँ होगा 1 0 0 1 1 0। सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू। तो अब अगर हम कन्वर्सली चलें तो 38 ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू दिस एंड 26 ऑफ हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 38। इसको अगर हम रिवर्स प्रोसेस में लेके जाएं तो हमारे पास यही आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। सो वी कैन से दैट 26 of the hexadecimal is equivalent to 100110 of the binary number system। तो ये एक और एग्जांपल है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 9f hexadecimal is equal to question mark in binary number system। So first we will have to convert the hexadecimal into decimal value। We will write f multiplied by 16 raised to power 0, 9 multiplied 16 raised to power 1। We will simplify these values to get the decimal value, and after getting the decimal value we will divide it by 2 repeatedly till we reach or till we reduce the quotient to value 1 or 0। So this is the whole process that you can use to perform conversions from hexadecimal number system। Now I have a special topic for you, and that is how we can convert negative decimal number into binary number system। In decimal number system it is easy for us to represent negative numbers using a minus sign। We can say that 56 is positive and minus 56 is negative। But in binary number system there is no minus sign for us। We cannot say that this is a negative binary value because binary number doesn't have the minus sign। So how a sign is represented in binary number system? बाइनरी सिस्टम में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो किसी भी नंबर के साइन को इंडिकेट करती है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो आपका नंबर पॉजिटिव है, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है
तो आपका नंबर नेगेटिव। सो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टूज कम्प्लीमेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। कन्वर्जेंस कैसे परफॉर्म करेंगे? आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, नेगेटिव नंबर, आप 3 स्टेप्स में इस काम को परफॉर्म करेंगे। इन द फर्स्ट स्टेप you will find out the binary of equivalent unsigned decimal. In the second step you will calculate the ones complement of the binary value found calculated in step 1, and in the last step you will find the twos complement of the value obtained in the second step. So here we have an example. हमारे पास -58 है और हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी वैल्यू में। सो इसके लिए मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास जो एग्जांपल है, कन्वर्ट नेगेटिव डेसिमल टू बाइनरी, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि -58 है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी। -58 in decimal is equivalent to binary. So पहला स्टेप क्या होगा? Find binary of equivalent unsigned number. Now -58 जो है वो नेगेटिव है, +58 पॉजिटिव है, और जो सिंपल 58 है वो अनसाइंड है। This is unsigned. So we will find the binary value of 58. अब हम इसके लिए क्या करेंगे? दोबारा से वही लेआउट क्रिएट करेंगे और 58 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर। Now 230 times is 60. So we will use 229 times is equal to 58, remaining is 0. अब दोबारा 29 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 214 times is 28 and the remainder is 1. अब हम 14 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 7 times 14 and the remainder is 0. तो 12 इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 3 times 6 and the remainder is 1. इसको हम दोबारा डिवाइड कर देते हैं। सो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी 111010। नाउ यू विल से दैट इट हैज़ 1 ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड एंड इट इज़ ए नेगेटिव नंबर। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पर आपके पास 6 बिट्स है ना, तो आपने इसकी 8 बिट्स पूरी करनी है, कंप्लीट 8 बिट्स। 8 बिट्स जब कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड पर ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। सो वी विल हैव 2 zeros, 3 ones, 0 1 0. Now this was our number and we added 2 extra bits to make it an 8-digit number. अब अगर आप देखें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड वंस कम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 1 1 1 0 1 0। यहाँ पर मैं दोबारा लिख दूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। सो इसका हम वंस कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू है 0 0 1 1 1 0 1 0। इसका टूज कम्प्लीमेंट बहुत आसान है, वंस कम्प्लीमेंट सॉरी।
आपने सिंपल बिट्स को चेंज कर देना है, जो 0 उनको 1 बना दें और जो 1 उनको 0 बना दें। सो वी विल हैव 1 1 0 0 0 1 0 1। दिस इज वंस कंप्लीमेंट। इन्वर्ट बिट्स, वंस को जीरोस बना दें एंड जीरोस को वंस बना दें। नाउ वी हैव स्टेप 3, फाइंड 2's complement of 1 1 0 0 0 1 0 1। अब हम ये 2's complement कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका बड़ा सिंपल सा हल है कि ये जो वैल्यू आई है इसमें हम 1 को ऐड कर दें। वी विल ऐड 1 टू इट। सो इसके लिए हम बाइनरी अरिथमेटिक करेंगे। बाइनरी अरिथमेटिक का रूल कहता है कि आप जब 1 एंड 1 को ऐड करेंगे तो डेसिमल के लिहाज से ये क्या बनेगा 2। 2 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनता है 1 0। सो वी विल राइट 0 हेयर एंड वी विल टेक 1 कैरी। नाउ 1 प्लस 0 विल बी 1। We can write the remaining numbers as it is. Now this value 1 1 0 0 0 1 1 0 is the 2's complement and it is in fact the binary value of minus 58। ये हमारे पास -58 की बाइनरी वैल्यू। हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले अनसाइंड नंबर फाइंड आउट किया। अनसाइंड नंबर फाइंड आउट करने के बाद उसकी बाइनरी निकाली, उसको 8 बिट्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसका हमने वंस कम्प्लीमेंट लिया। वंस कम्प्लीमेंट में हमने क्या किया, सिंपल बिट्स को इन्वर्ट कर दिया। और उस थर्ड स्टेप में वंस कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई उसमें हमने सिंपली 1 ऐड कर दिया, जिससे हमारे पास 2's complement वैल्यू आ गई। सो ये हमारे पास प्रोसेस था नेगेटिव डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैंने 8 बिट्स में इसको क्यों कन्वर्ट किया, या मैं हर नंबर को ही 8 बिट्स में कन्वर्ट करूँगा। सो इसका आंसर सिंपल है। आपके पास n बिट्स हैं और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं हाउ मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ यू कैन गेट फ्रॉम दीज बिट्स। इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपने याद रखना। इसमें एक रेंज बनेगी -2 की पावर n-1 से लेके ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला बनेगा जिसको आपने ज़हन में रखना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 8 बिट्स, सो 8 बिट्स आर comfortable for me to calculate any value in this range. Here we have 8 minus 1 और here we again I have 8 minus 1। इससे हमें आंसर क्या मिलेगा, -2 की पावर 7 से लेकर +2 की पावर 7 -1। ये हमारे पास एक रेंज आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अब हम 2 की पावर 7 कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। We have 1 to 8, so our this range will result in -1 to 8 to +1 to 7। सो जब भी हमारे पास
नंबर्स इस रेंज में होंगे फ्रॉम -1 to 8 to +1 to 7, वी विल कंप्लीट 8 बिट्स। और जब हमारे पास नंबर्स -1 to 8 से छोटे या +1 to 7 से बड़े हो जाएंगे तो तब हम 16 बिट सिस्टम में चले जाएंगे। तो दिस इज़ बेसिकली द मेन रीज़न बिहाइंड इट। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपने बस एक एडिशन का पॉइंट ध्यान में रखना और एक ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना जो आपको बताएगा कि हमारे पास अगर बिट्स गिवन हों तो हमारे पास कितनी रेंज में नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।